Anyway, very good morning. Good. So now it's look like a great class. Okay. Generally, what happen in the class? If I will also tell in somewhat lower speech, lower voice, that should be up to end of the table. Am I right? Am I audible, Sriraj? Hetalva? I think it is clearly as well. Because we all are keep quiet and we are all ready to listen me. That is the main thing. If you want to ready to listen me, it will be very easier to you, me and other people as well. Okay. So before going to much more deeper, I will just confirm whether I am audible or visible or not. I will start the Miss story. Katha, am I audible? Katha, can you unmute me? Sorry, can you unmute yourself? Yes, Hope my screen is visible also. Mira? yes, sir. Mira? My screen, yeah. So, great. So, what we have discussed about antigen antibody interaction, right? In antibody antigen interaction, we had discussed although there are several type of reactions are there, but we had discussed with precipitation reaction, right? Precipitation reaction is like this. Okay, we already completed this one. Then we had also completed simple diffusion, where what happened in the diffusion, in the criteria of diffusion, both antibody and antigen move, and whenever they found their specificity in the epitope and the paratope, they are going to interact with each other by 4 type of different non-covalent bonds. Okay, and due to this interaction, there is a precipitation line will come. Clear? Is that clear? Now, we had completed simple diffusion. Okay, one dimension. We had completed also 2 dimension, right? I think that much we have completed, right? In 2 dimension, whatever the antigen concentration is directly proportional to ring diameter. That much we had concluded in last class. Is that clear? Do you have any question up to that? How many of you have gone through the PPT? How many of you have gone through the PPT? मानसी, देन सृजा. आप पढ़े ना? ऐसे हाथ रखो मुझे जैसे लगा. क्लास में क्लियर हो जाना, इट्स ओके, बट इट्स माई सजेशन, advice, at the end request, at least go once whatever we had discussed today. Purposefully each and every day I am not uploading, but whenever I am uploading, that is necessary for you, and I will just whatever put a message on your group. Okay, so that's why I am keeping the message. You just go through that particular PPT. Okay, so by the way, इतना
double immunodiffusion. What do you mean by double immunodiffusion? Any idea? Punna? Any idea? सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन में क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन? वन डायरेक्शन इज नॉट करेक्ट. नो, only one molecule will move, either antigen or antibody. Generally what happen, antigen are moving, antibody you are fixing in the gel, right? In single diffusion there is also two type, one dimension, two dimension. Double diffusion means both will move. If triple diffusion is there, not possible. I will make a gel. In the one well I will keep antigen, other well I will keep antibody, and I will take that gel and move. So antigen move, antibody move, then gel is also moving. Matrix, that gel will also move. मुझे पता ज़्यादा टाइम में साइलेंस नहीं रह सकता हूँ, पर कोशिश कर रहा था एटलीस्ट. एनीवे, डबल इम्यूनोडिफ्यूजन इज नोन एज अल्केटोनी या ऑक्टेलोनी. जैसे आप प्रोनाउंस करने करो ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, ऑक्टेलोनी मेथड. हाँ, क्योंकि ये लोग तो साइंस डेवलप कर रहे थे, हम तो कहीं पंडाल बना रहे थे. 100%. Anyway, this technique is known as a Swedish physicist, a physician, Octerloni, and the method is famous for Octerloni. देखो, we are discuss Ordini method, Mancini method, Octerloni method. मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मेथड का नाम से ही आएंगे. डबल इम्यूनोडिफ्यूजन आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन आएगा ऑक्टेलोनी मेथड डिस्क्राइब करो, राइट? जैसे मेंसिनी मेथड आपका था, ओडिनी मेथड था सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन वन डायरेक्शन, मेंसिनी था सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन टू डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, टू डायमेंशन. ये डबल इम्यूनोडिफ्यूजन इज डिस्कस डेवलप्ड बाय योर ऑक्टेलोनी. ओके, ओडिनी, मेंसिनी, हाँ अभी मेंसी आज आ गई तो मेंसिनी प्रोटोकॉल, दूसरा ऑक्टेलोनी. हाँ, उसका डबल इम्यूनोडिफ्यूजन इन वन डायरेक्शन, सॉरी सिंगल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशन. ठीक है, वो अकेला है, उसका दो हाथ है, वो समझना. सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन इन टू डायमेंशन. नाउ popularly known as Octerloni double diffusion या Octerloni method. Is that clear? Now here what happened, both antigen and antibody get diffused to each other. Both antigen and antibody, not single one, both will move to each other. Look at here in the picture. What is happening in the picture? There is antibody in a well, there is antigen is also in a well. They move towards each other. Then when they found the complementarity, precipitation line will form. Is that clear? Okay, Miss RT, right? Repeat.
नहीं, एंटीबॉडी नीचे, एंटीबॉडी जेल में था। आप लास्ट क्लास थे ही नहीं, राइट? हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है? अच्छा मुझे बताए, ऑनलाइन बीच में मैं आपको सुनाई नहीं देता होगा, राइट? मैं वहाँ जाता हूँ कि सुनाई देता है? मैं वहाँ पे जाके ड्रॉग सुनाई देता है आपको उस टाइम? जस्ट अपर स्लाइड। रुको रुको रुको, सभी को दिखाओ। वैसा बोल रही है, हमने यहाँ पे एंटीजेन डाला है, तो ये जो प्रेसिपिटेशन है वो बीच में क्यों हुआ? वो तो यहीं पे हो जाना चाहिए। कहीं भी होगा। क्यों? अगर जेल में, पूरे जेल में है तो वो यहीं पे हो जाना चाहिए ना। राइट, बैठो बैठो। वेरी गुड। बात है कि बीच में नहीं आया ये, सेंटर तो ही कहीं होगा। यहीं पे क्यों है, यहीं पे क्यों, यहीं पे क्यों नहीं? डिफ्यूजन तो हुआ, डिफ्यूजन तो होने से कहीं भी हो सकता है। कहाँ पे प्रेशर टाइप बनता है? एंटीबॉडी हर जगह बाइंड होंगे, क्योंकि यहीं पे भी एंटीबॉडी था। एंटीजन बाइंड मूव करते ही पाया। Who can answer this question? यहीं पे ही क्यों हुआ? वेरी गुड। हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन जहाँ पे होंगे, जहाँ पे एंटीजन कंसंट्रेशन जितना है उसका अमाउंट में एंटीबॉडीज को मिल जाएंगे। सपोज यहीं पे हर जगह में एंटीबॉडी आपका है 10, हर जगह में 10 है। जब यहाँ से एंटीजन मूव करके आएगा, यहीं पे बहुत ज्यादा होगा एंटीजन, धीरे धीरे करके जब 20 एंटीजन जहाँ पे वो एलाइन बनेगा, क्योंकि 10 एंटीबॉडी को 20 एलाइन कर लेगा। जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जहाँ पे एंटीजन कंसंट्रेशन जितना है टोटल एंटीबॉडी सैचुरेट हो जाएंगे, उस एरिया में ही आपको प्रेसिपिटेशन लाइन दिखाई देंगे। हमने पहले ही पढ़े थे, क्लियर? अभी उस एरिया में एंटीजन और एंटीबॉडी इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, समझ गए? इक्वल मतलब 10 एंटीजन के लिए 10 एंटीबॉडी, इक्वल नंबर। इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन मतलब 10 एंटीबॉडी के लिए 20 एंटीजन, दैट इज इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है तलवा? वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी मतलब कोई एंटीजन ना बचा हुआ है ना एंटीबॉडी, सब पूरा बाइंड कर चुके हैं, तो वहां से और पीछे जाएगा ही नहीं, एंटीजन रह जाएगा क्योंकि बाइंड हो गया पूरा। यहीं पे ज्यादा एंटीजन है, सपोज 50, 40, 30, 20, 10, अगर एंटीजन ना है ही नहीं, 1+, ये सारे बाइंड हो गए, आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है। जगह नहीं मतलब एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी तो छे थ्रू आउट जेल में छे, एंटीजन पती गयु। खबर पड़ी? गुड। सो वी विल मूव। ऑक्टोलोनी साहब क्या किए थे, उनका पास कुछ काम धंधा नहीं था, स्पेशली पूजा नहीं करते होंगे लगता है, इसलिए बहुत। एनीवे, सो ये आपको समझ गए दिस लाइन, दिस इज योर एंटीबॉडी, दिस योर एंटीजन, बोथ आर मूव टुवर्ड्स ईच अदर, exactly not towards each other, they moving throughout surrounding, right? But when they get their precipitation line, now used to detection and identification, quantification of antigen and antibody both. अभी मुझे पता करना है किसको डेंगू हुआ है नहीं हुआ है, वो एंटीजन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपका ब्लड लेते हैं, एंटीजन टेस्ट भी होता है, उसका एंटीबॉडी डाल देंगे, आपका बॉडी से डाल देंगे, उसको देखेंगे रिएक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल। अगर रिएक्शन हो रहा है तो कितना अमाउंट में हो रहा है, दैट्स ऑल। सो लास्ट टाइम
आई थिंक कोई संडे में anyway, so now come to this double immunodimension dimension. Generally it is also developed by full 4a. Anyway, you can all the comparison or Octelloni method. What have happened here? Antibody are incorporated in a test tube in the bottom. Above the thin layer plain agar is placed. फर्स्ट जेल, जस्ट रिमेंबर, जो हमने टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में बनाए थे एंटीबॉडी पूरा मिक्स कर दिए थे, पर यहाँ पे क्या करेंगे, एंटीबॉडी नीचे डाल देंगे, उसके ऊपर जेल रखेंगे, उसके ऊपर एंटीबॉडी रखेंगे. गॉट इट? अभी लुक एट हियर, नीचे एंटीबॉडी इन द अगर जेल, थोड़ा अगर में जेल बना एंटीबॉडी रखे मतलब किसका ऊपर तो रखना पड़ेगा, उसका ऊपर में प्लेन जेल रखेंगे, उसका ऊपर में एंटीजन डालेंगे. सेम होगा, जेल मतलब प्लेन अगर है, ऊपर एंटीजन डालेंगे, नीचे एंटीबॉडी, एक लाइन बनेगा आगे. वेर इट विल फाउंड व्हेन द जोन ऑफ इक्विवेलेंस, वहाँ पे प्लेन में पास करते करते आएंगे, बनेंगे. अब मुझे बताओ रिलेटिवली कौन सा फास्टर होगा प्रेसिबल लाइन बनने के लिए? सिंगल, डबल, थ्रूआउट द जेल एंटीजन प्रेजेंट, इसलिए जल्दी होगा. ओके, सोचो. ओके, चलो मैं आपको सोचने के लिए टाइम देता हूं. आप सोचो, मैं कुछ कंक्लूजन नहीं करूंगा अभी, जस्ट कंफ्यूज कर रहा हूं. आप दोनों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं. एक है कि अगर आप डबल करोगे तो नीचे ऊपर क्या है, एंटीजन है, नीचे एंटीबॉडी है, थ्रू आउट देर इज नथिंग इज देर. सो यहाँ से पिंग स्पीड में मूव कर, यहाँ से स्पीड में मूव करके आएगा, बन जाएगा. तो इसको सपोर्ट किया मैंने, इसको सपोर्ट कर रहा हूँ. ये यहाँ से आने के लिए टाइम लगेगा, पूरा अंदर में ऑलरेडी है तो ऊपर से जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी है, उसको आने का जरूरत नहीं है. तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर मुझे बताओ बाद में. दोनों को सपोर्ट किया. मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्लास बोला था, आपका आंसर राइट रॉन्ग नहीं हो सकता है, सिंपल. हाँ, कुछ कहीं एरर होगा, थोड़ा बहुत शेप साफ चेंज करना पड़ेगा, आपका आंसर तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता है. हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो. एक क्वेश्चन ने पूछा क्या, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. हाँ बताओ. कोई बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो स्टूडेंट बोला राजेंद्र प्रसाद, टीचर बोल नहीं, यू आर रॉन्ग. क्यों ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट है. तो आपका क्वेश्चन गलत है सर. आप पूछना फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है. सॉरी, आप भी हाई लेवल का ही हो.
आपको कोई देखो, यू आर इन द हाई लेवल, इट डजंट मीन दैट आई एम इन लोअर लेवल। आप स्मार्ट हो इसका कोई मतलब नहीं मैं डफर हूं। मैं क्लियर करता हूं, मैं बोलता मैं स्मार्ट हूं इसका मतलब नहीं बोलता आप डफर हो। एनीवे, सो इज दैट ओवर? नहीं, कौन सुनते हो? मैंने इसके बोला सोच के बताओ, आज दिन भर आपके पास टाइम है। चलो अभी वी विल डिस्कस अबाउट सम theoretical things in practical application. मेंची શું થયો? वेरी गुड, चलो अच्छी है। सो एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर होते हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग ए पर्टिकुलर टिश्यू। एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर होता है 35S प्रमोटर, जस्ट लाइक 30, वो कहीं पे भी एक्सप्रेस करते हैं। जस्ट उनको एक पिंच मतलब ट्रांस एलिमेंट का ज़रूरत है, जहाँ पे आपका कोई भी हीट एलिमेंट चाहिए, जस्ट हल्का सा हीट करो एक्सप्रेस होंगे। सही, इसको कुछ बोल दिया बस घूम गई। एनीवे, हियर व्हाट हैपन, एंटीजन एंटीबॉडी डिफ्यूज इंडिपेंडेंटली throughout agar gel in 2 dimension. When I am talking 2 dimension, one is vertically, other is horizontally, that you know radially. What is terminology known as radially. Now what happen? Procedure very simple. Wells are cut in agar gel. हम वेल बनाएंगे, वेल को अगर जेल में काटेंगे। एंटी सीरम कंसिस्टेंट एंटीबॉडीज आर पॉट इन सेंट्रल वेल। आई विल पुट एंटीबॉडी इन द सेंटर, and of course if I am applying a serum, what does it mean? Serum antibody, I am not talking, तो मैं एंटीबॉडी बोलता, सीरम क्यों बोला? तो अभी तक तो मैं एंटीबॉडी बोल रहा, सीरम नहीं बोल रहा था। अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया, बोल रहा था मैंने ऊपर एंटीबॉडी डाला, नीचे एंटीजन डाला, पर अचानक आई जस्ट टर्न इनटू सीरम। इसका मतलब है द सीरम कंटेन्स पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सीरम, समझ लेना वहाँ पे बहुत टाइप के एंटीबॉडी होंगे। व्हेन आई अचानक जाते बोला मैं यहाँ पे ब्लड डाल रहा हूँ, मतलब है कि बहुत टाइप के एंटीजन होंगे, बहुत टाइप के एंटीबॉडी होंगे, एक ही नहीं। अगर मैं एंटीजन एंटीबॉडी बोल रहा हूँ मतलब कोई पर्टिकुलर के लिए बात कर रहा हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सीरम, ब्लड, देन नसल फ्लूइड, लिक्विड, ऐसा कुछ बोल रहा मतलब जस्ट आई डोंट नो अबाउट द एंटीजन, आई डोंट नो एंटीबॉडी, आई एम जस्ट टेस्टिंग व्हाट इज प्रेजेंट और नॉट। क्लियर? मोनोक्लोनल था, स्पेसिफिक था। ओके, नाउ एट द जंक्शन ऑफ फॉर्मिंग एन आर्क, ऐसे आपको समझना है और थोड़ा याद रखना है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन ऑफिटॉप इन एंटीजन, लुक एट in this picture, small a, because what I am doing here, just wait, here what I am doing, this is your gel, बीच में होल किया, यहीं पे मैं एंटीबॉडी डाला। जनरली एंटीबॉडी इज पॉलीक्लोनल, 5 डिफरेंट टाइप में दिखा रहा हूं। चारों तरफ होल किया, ए पे एंटीजन डाला 1, ए पे एंटीजन डाला 2, ए पे एंटीजन डाला 3, ए पे एंटीजन डाला 4। इज दैट क्लियर? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन मैंने लिया है, एक ही नहीं है यहीं पे। फिर क्या हो गया, एंटीबॉडी मूव करेगा, एंटीजन मूव करेंगे। अगर ऐसे टाइप का लाइन आया, आर्क को पता है ना, सर्किल में आर्क होता है, दिस इज सर्किल, दिस इज योर सेंटर, दिस मच इज योर आर्क। क्लियर? इफ आर्क इज कमिंग, दैट मीन्स
the antigens are identical. Both antigens are identical. The R here what happened? A antibody antigen complex, antibody antigen complex. क्योंकि इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा ऐसे लाइन बनेंगे. If arc is coming, both the antigens are identical या similar. Is that clear? Second one, similar होंगे, same होंगे. हाँ मतलब एपिटोप सेम है. चलो एंटीजन नहीं, आई विल करेक्ट, कॉमन एपिटोप. एंटीजन अलग होंगे पता नहीं, नहीं पर एक ही रिएक्शन करेगा ना. चलो मैं एक ही टाइप का एंटीबॉडी डालता हूँ. ओके तो हाँ एक ही टाइप का एपिटोप. whenever it found the similar epitope it can bind. Clear? So अगर हम देखो कैपिटल ए रखा है, एक ही टाइप का एंटीबॉडी मिल गया है. ओके पहले में बहुत कुछ आएगा. चलिए अब हम एक ही टाइप कर ले रहे. ओके इज दैट क्लियर? चलो सेकेंड है, अगर ऐसे क्रॉस लाइन आया तो हियर व्हाट हैपेंड, the epitopes are different. That means they are different type of antigen. Clear? एक है सिमिलर होगा, दूसरा नॉन सिमिलर होगा, तीसरा हमने एक पढ़ा था क्रॉस रिएक्टिविटी, पार्शियली आइडेंटिकल, पूरा नहीं है तो होगा तो ऐसा होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे. मतलब आर्क विथ स्पोर, ये तीनों आपको एग्जाम में आएंगे कोई ना कोई एक पूछा जाएगा. इसका डिफाइन करो, मीनिंग क्या है. अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आर्क आता है तो बोथ एंटीजन कंटेन सिमिलर एपिटोप. अगर क्रॉस लाइन आते हैं लाइक दिस तो इट विल कम द एपिटोम्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स एंटीजन्स आर डिफरेंट. थर्ड, अगर आर्क विथ स्पोर या फ्यूजन विथ स्पोर, ऐसे स्पोर जैसा दिखता है ना, बाहर निकलता है ना, इट इज नोन एज क्रॉस रिएक्टिविटी. दैट मीन्स दिस सिमिलर एंड सम टाइप ऑफ सिमिलर. बट जेल में आपको ऐसे दिखेंगे, जेल में तो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे. अब हम जब जेल करेंगे हमको ऐसे लगेगा. देख पा रहे हो जेल में आपको कैसे दिखेंगे? उस टाइम मुझे पूछना ये क्या है, आप खुद कानून लिख के लेके आओगे. हाँ पूछो. नहीं एंटीजन नहीं एंटीजन तो एक ही टाइप का हम डाल रहे. हम अभी एक ही टाइप का डाल रहे, एक ही टाइप का एंटीजन डाल. पर यहाँ पे एक ही टाइप मतलब एक ही एंटीजन इसमें है, अलग अलग टाइप का दो डाल रहे हैं. मुझे पता नहीं है, दो ट्यूब में दो एंटीजन, इसमें भी एक टाइप एक ही एंटीजन है, इसमें एक ही एंटीजन, पर मुझे पता नहीं दोनों सेम है नहीं सेम है. तो मैं कैसे चेक? हाँ कोई भी एक एंटीबॉडी डाल दूंगा और मैं दोनों एंटीजन को डाल के चेक करूंगा. एंटीजन ए अगर ऐसे आया तो दोनों सेम है, अगर ऐसे आया दोनों अलग है. और एक एंटीबॉडी अलग है ना, देखो हाँ एंटीबॉडी अलग डालना पड़ेगा. 100% चेंज कर दिया. नहीं अगर हमारा पास ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको ये तो मैं तो एक्सपेरिमेंटल पता है, मुझे पता है
ए में 5 टाइप के एंटीबॉडी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे ही बनेगा। हमको एंटीजन को डिटरमिन करना है। हम किसका नेचर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं? एंटीजन का। आऊंगा मैं एक मिनट इसका। ए में क्या है, अगर मैं 2 अलग अलग एंटीजन लूंगा और उसका करस्पॉन्डिंग 2 एंटीजन की तरफ लूंगा तो ऐसे प्लस साइन बनेगा। इसका मतलब हुआ ए में पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी हो, अगर इससे लाइन आया तो 2 एंटीजन अलग है, सेम एंटीजन नहीं है। और डेफिनेटली 2 एंटीजन सेम है तो अलग 2 एंटीजन अंदर में है। क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे 5 टाइप का एंटीबॉडी होगा तो भी 2 ही एंटीजन आता है। पॉलीक्लोनल हो तो फिर ए में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। तीसरे ए पे बोलो दोनों पे जहां पे आपको ऐसा लाइन आ रहा है दैट मींस योर जोन ऑफ इक्विवेलेंस। क्लियर? राइट? जी मैडम बोलिए। ठीक, नहीं करते, कर देता हूँ, कर देता हूँ। हाँ आपका बस ऑप्शन है और मेरा एक व्हाट ही कॉल एग्जैक्टली आई एम नॉट फाइंडिंग द टर्मिनोलॉजी। मेरा आपके लिए क्वेरी है। हाँ, आप हमेशा मुझे क्वेश्चन करते हो, मुझे भी तो मौका देते हैं कभी कभी भगवान। मे आई कंटिन्यू द पूरी मैडम का लेक्चर? हाँ पूछ रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन है मेरा। उनका थोड़ा तबीयत से सही तो ओके, थैंक यू। हाँ एनीवे सो अच्छा, हमारा आगे थोड़ा जाएंगे। सो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, क्योंकि हमने वी विल कंप्लीटेड, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। व्हाट हैव कंप्लीटेड? वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी व्हाट? प्रेसिपिटेशन, सिंगल डिफ्यूजन, डबल डिफ्यूजन। सिंगल डिफ्यूजन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ऑर्डिनी, मेंशनी। इन डबल में ओनली octelloni, right? Octelloni method. Now we will move to the electroimmunodiffusion. Clear? In electroimmunodiffusion, what happen here? Here what is happening? Diffusion? Right. The antigen or antibody, they will move in the application of electric field. What is the significance of, what is the importance of this? The first one is fast. Second one is फास्ट होगा। एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, कभी कभी ऐसा नहीं है। जहाँ पे स्पीड होता है वहीं पे गड़बड़ होता है। स्लो हमेशा इजी होता है, अच्छा होता है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस वन? चलो मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ। स्टोरी है, एक पहाड़ का पार्ट में एक राक्षस रहता था, मॉन्स्टर राक्षस पहाड़ का नीचे। वो साइड में जो भी जाता था वो इतना जोर से चिल्लाता था, तो चिल्लाना सुन के हार्ट अटैक सभी का मर जाते थे।
इसको खाया नहीं अभी तक, इसका सामने भी नहीं है, कहीं साइड में खड़े होके चिल्लाएगा तो उसका आवाज इतना जोर से हुआ करता था कि सभी का हार्ट अटैक मर गया। एक आदमी एक दिन उधर कूद पास करके बाहर आ गया, मरा ही नहीं वो, बिंदा से बाहर आया, पुल चलते 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 आ गया। पुराना दिन चलते जाते थे, क्या बोलते हैं आपका एवेंजर्स तो था ही नहीं या रॉयल एनफील्ड था ही नहीं, तो उस टाइम लोग चल के रॉयल एनफील्ड एवेंजर पता है ना क्या चीज़ होता है, ये तो लड़के लोग तो पता ही होगा, इसलिए आपको तो पता है ना, बाइक्स होते हैं। चलो एक्टिवा, स्कूटी, जुपिटर, वो तो उस टाइम का था ही नहीं, तो चल के ही जाते थे। तो आदमी क्या किया, कई बार चलते चलते बाहर आ गया, राजा लोग तो राजा हुआ करते होंगे, राजा ने उसको क्या किया, राजा बना दिया। मतलब हाउ उसको सुना ही नहीं दिया। तो कभी कोई डिसेबिलिटी भी ब्लेसिंग होता है, वो गया होगा, बहरा है, सुना ही नहीं दिया होगा, बाहर आ गया, दैट्स ऑल, सेम। अभी बताओ इसका डिसेबिलिटी क्या है? फिर से बोलो। चलो रिलेटिव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हम रोक पाएंगे। चलो जवाब बोलो सब, मैं सभी को ऑब्जेक्शन नहीं नहीं होंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो अगर वो चार्ज ही नहीं होगा तब क्या करोगे? अभी बीएससी के मतलब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अभी इसको याद नहीं जुट रहा है। मेरा 2007 में पढ़ के क्या होगा ना, ए टू जेड ही भूल जाओगे, क्या जेड ही याद आ रहा है। नहीं ए के बाद कुछ का बी, नहीं बी का कुछ सी, ऐसे करके कंप्यूटर पे गिनाएंगे। इलेक्ट्रो इम्यूनोडिफ्यूजन का मेन ड्रॉबैक है दी मॉलिक्यूल शुड बी कंटेन सम काइंड ऑफ चार्ज, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा, पहले कितना भी डालो, राइट? बहरा है, सुनने ही नहीं देगा उसको। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, now use of electric potential for studying antigen anti interaction. What happened? We are using electrical potential for studying antigen anti interactions. Now immunoelectrophoresis, it is a process of combination of immunodiffusion and electrophoresis, right? That's why immunoelectrophoresis. We know that different antigens are separated according to the charge per mass. Sometimes what a mixture of antigen can be detected easily here, okay, because the antigens of some kind of mass
and so they have some kind of charge, and we know principle of electrophoresis. The molecules are separated according to the charge per mass ratio. Okay, according they get separated. Now procedure. A drop of antigen is placed, mixture of antigen. Here whatever antigen I have taken, that is mixture. Okay, here what happened, a drop of antigen is placed into a well in agar on a glass slide. There is a glass slide. ग्लास स्लाइड में हम क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ एंटीजन लेंगे. ड्रॉप ऑफ एंटीजन लेंगे मतलब दैट एंटीजन इज मिक्सर. क्लियर? देन व्हाट हैपन, इलेक्ट्रिक करंट इज passed through agar. We will pass the electric current. Now antigen will move in this according to the charge. Here we are not placed antibody yet. हमने एंटीबॉडी यहाँ पे डाला ही नहीं है. एक जगह में सपोज दिस इज द जेल, मैं यहीं पे एंटीजन डाला है और इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से पास किया, तो एंटीजन क्या अगर मिक्सर होंगे तो इससे सेपरेट हो जाएंगे. अगर मुझे एट ए टाइम 5 डिजिट चेक करना है, एंटीबॉडी अलग अलग जगह में डालेंगे और एंटीजन का साइज हम देखते हैं. एटलीस्ट रुको, एटलीस्ट पता तो चलेगा इसमें कितना एंटीजन है ब्लड में. ये एंटीबॉडी फिर हम स्पेसिफिक टेस्ट फिर से करेंगे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए. लुक एट दिस पिक्चर. ए वेल ऑफ एंटीजन मिक्स. फिर मैं क्या करूँगा, अभी ए पे एंटीबॉडी नहीं डाला है मैंने, फिर क्या करूँगा, मैंने इलेक्ट्रिक करंट दूंगा. तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 या 4, 1 2 3 4 4 डिफरेंट एंटीजन है वो सेपरेट हो गए. सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा. अभी मैं क्या करूँगा, ऊपर में एंटीबॉडी डालूंगा. वो भी मिक्सर है, 4 डिफरेंट टाइप का वो भी है. अभी मैं कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करूंगा, हो गया. जस्ट एंटीजन को सेपरेट करने के इलेक्ट्रिक करंट में दिया था. ना ओवर इलेक्ट्रिक करंट इज ओवर. नाउ व्हाट हैपन, वो मूव करेंगे नीचे की तरफ. क्लियर? सभी की साइज अलग-अलग होगी ना, तो प्रेसिपिटेट होगा. अलग-अलग जगह पे होगा, उसके ऊपर अलग-अलग जगह पे होगा, अलग-अलग एरिया में होगा. तो उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं अगर इस एरिया में आया है तो ये एंटीजन नहीं. हाँ, मल्टी डिजीज डिटेक्ट कर सकते हैं. वही तो मल्टीपल डिसीज डिटेक्टर एट ए टाइम हो सकता है. और एक बड़ी में आपको मलेरिया पर से इंटर किया मतलब एक ही नहीं, उसका 4 टाइप का एंटीजन हो सकता है. कंडीशन एक ही है, सब साइज अलग होना चाहिए. हो गया 100%. एंटीजन का साइज तो अलग ही है, सर ये 2 चीज सेम है. हाँ, अगर साइज सेम है तो दी बफलो इंटर इनटू द वाटर. गए भैंस पानी में, अगर सभी का सेम है. ओके, अगर केस ऐसे हो गया तो एक ही जैसा एक ही जगह में बन जाएगा, एक ही जैसा लगेगा. आप कंफ्यूज होकर घूमते रहोगे, एक ही है पर एक ही नहीं होंगे. क्लियर इज दैट? एडवांटेज, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस? नंबर ऑफ एंटीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन ए सीरम एट ए टाइम. कितना टाइप का एंटीजन, इनका 4 नहीं हो सकता, 40 भी हो सकता है. क्या हमारा एंटीजन अलग अलग साइज का है. अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा कि जो 4 टाइप का एंटीजन था तो 4 अलग अलग जगह में सेपरेट हो जाएंगे. एक चार्ज और मास रेशियो. एक एंटीजन छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो स्मॉलर साइज पहला आ जाएगा. एक और एक तो 4 एंटीजन भी सेपरेट हो गए. फिर मैं ऊपर क्या करूँगा, पूरा इधर से इधर तक एक वैल्यू लूंगा बड़ा सा हो, और वहीं पे मैं एंटीबॉडी डालूंगा, 4 टाइप का एंटीबॉडी डालूंगा. तो क्या होगा, हम सीरम भी डालेंगे.
नाउ ओके, कीर्ति एंड आरती समझ में आया? बनराज समझ में आया? गुड। हेतलबा इनको पूछी तो लेते, जो पूछ रहे थे मैं इनको पूछूंगा नहीं, समझ में नहीं है, समझ गए? जो नहीं पूछता उनको पूछता हूँ मैं, हमेशा जरूरी नहीं है, कभी पूछ सकता हूँ किसी को, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट यूनिवर्सल। बाय द वे, नथिंग इज कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, ओनली वन चीज इज कांस्टेंट। व्हाट इज दैट? वन चीज इज कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, टाइम। क्यों चेंज होता रहेगा? हाँ, एनर्जी आप इस गैलेक्सी में एनर्जी को दूसरा के पहुंच जाए, एनर्जी चेंज हो जाएगी। सोलर सिस्टम में आपको कांस्टेंट एनर्जी मिल जाए। सोलर सिस्टम चेंज कर दो, मार्स चले जाओ, तो एनर्जी कुछ अलग होगा डेफिनेशन। ओके, क्लियर? नाउ वी विल गो टू द मार्स थ्रू रॉकेट। हाँ, अब मार्स जा रहे थे ना, अपनी को छोड़ के आएंगे। क्योंकि मोरबी का लोग कंप्लेन करते हैं मुझे। दूसरा मोरबी है ना, अस्मिता, मुझे वही कंप्लेन की थी। ठीक है, आपको मम्मी को पूछता हूँ। एक मिनट। Now we'll discuss about rocket immunoelectrophoresis. All these electrophoresis system, whatever we are discussing about the rocket हो, immunodiffusion, all these may come in 4 marks. किसी को भी छोड़ के मत आना, छोड़ के आओगे तो फेल होगे। इजी है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, दैट्स ऑल, कुछ ना कुछ लिखना है। बाय द वे, स्कोर पता चला आप लोगों ने? नहीं मिला अभी तक?
एनीवे, सो रॉकेट इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस में एंटीजन माइग्रेट थ्रू ए जेल विच कंटेन एंटीबॉडी. स्लाइटली चेंज करेंगे. हियर व्हाट हैपन, antigen will migrate in a gel which contain antibody. Is it single diffusion or double diffusion? Who are agreeing it is double diffusion? Who are agreeing it is double diffusion? Raise your hand. चलो, who are agreeing it is single diffusion? Who are agreeing it is not single, not double? Am I told you to justify your answer? बाहर में अनुश्री मैजन છે. बताओ. मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है. आप लोगों कौन कौन इसको सिंगल इम्यूनो डिफिशिएंट एग्री करते हो? यह तो उठाओ. लेफ्ट, ओनली लेफ्ट हैंड. सिंगल इम्यूनो डिफिशिएंट जो एग्री करते हैं लेफ्ट हैंड उठाओ. यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ो. एंटीजन माइग्रेट थ्रू ए जेल विच कंटेन्स एंटीबॉडी. जेल में ऑलरेडी एंटीबॉडी है. एंटीजन मूव करेगा. मैं सिंगल डायमेंशन डबल डायमेंशन नहीं पूछ रहा मैडम. सिंगल it is completely single because the antibody is inside the gel. Now rocket shaped precipitation line is formed which can be visualized by staining. Staining करने rocket shape लगेंगे. Now allow quantification of antigen. Just like आपका याद करो, concentration of antigen is directly proportional to the ring diameter, right? हमने एक पढ़ा था, याद आया? What is that? Double immunodiffusion में हमने क्या किए थे? throughout gel में antibody था. Antigen we are getting as a concentration, high concentration to lower or lower to high. Now the concentration of antigen is directly per ring diameter. हमने draw भी किया था same. Sorry, single immunodiffusion in two direction. That is two direction, two dimension. Now peak of rocket height. Here what happen? The rocket height peak is directly proportional to antigen concentration. Here something different. Clear? Now procedure is very simple. Look at here. Look at the picture. But here what happen? I will make four different well, and this is your anode or a cathode, and make sure that your antigen is positively charged because migrate from anode to cathode, and antibody either negative और पॉजिटिव होगा तो वो भी भाग के चला जाएगा, और न्यूट्रल. इधर पॉजिटिव और न्यूट्रल. न्यूट्रल होगा तो मूव नहीं करेगा, जेल में रहेगा. पॉजिटिव होगा तो इधर मूव करेगा. क्लियर? अगर वो भी नेगेटिव होगा तो ये जाएगा तो वो भी चला जाएगा. इज दैट क्लियर? होपफुली.
भूख है, अगर उसको बैठना है तो बैठने दो ना, मैं ही बुलाया। अच्छा नहीं, मैंने उसको बुलाया कि पूरी मैडम के लेक्चर I will continue the Puri Madam's lecture. Okay, you can sit here as a BA, as of now for 1 hour MSc Micro, and you have to read immunology. Is that clear? I am not questioning you, this is my answer. हिंदी में बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा बता रहा हूँ. Okay, is that clear? Keep quiet. So here what happened, look at this. Suppose in a fast well I am keeping 50 mg per ml of antigen in fast well. Look at here. So rocket height will be 1.6 mm. It may be anything. When I will gradually increase the concentration of antigen, when I gradually increase the concentration of antigen, the rocket height gradually according to that proportion. Proportionately, okay, accordingly, what concentration of antigen, proportionately the rocket height will increase. That's all. Okay, and it is also, it will come also in 6 mark and 8 mark. Describe procedure and applications of rocket envelope. What is the application? What is the main application of this? Concentration of antigen. We can measure the concentration of antigen. Because all the antigens are same. Antibody is one type of antibody we are adding. But how much concentration of antigen is there? ये सारे पुराना टेक्निक उस टाइम यूज किया जाता, अभी तो आरटीपीसीआर आ गए, बहुत स्पीड में हो जाता है काम. रियल टाइम पीसीआर और सिंगल डिफ्यूजन. हाँ, पर उसमें टाइम लगेगा. इसमें इलेक्ट्रिक अप्लाई कर दिया. क्लियर? सो नहीं कर अननोन नहीं, we cannot perform 1 minute, we can't perform this one as a unknown. It should be known. Antigen and antibody both should be known. Just for maintenance, because we know that in particular some type of, we know the antigen, know the antibody, but I know the for the patient having the typhoid. How much severity is there? How much antigen present in that particular body for testing that one? Severity. हाँ, ऐसा क्यों है? सेम आग में सेम बनता है, इलेक्ट्रिक बहुत स्पीड जाता है. अगर इलेक्ट्रिक आप नहीं डाल सेम छोड़ोगे तो ऐसे बनेंगे. If I not apply electricity, एक ही टाइप का ही. अगर इलेक्ट्रिक का ऐसे बनेंगे. हाँ, एक ही. यहाँ पे एंटीजन का कंसंट्रेशन मेजर करोगे पर हमें कंसंट्रेशन पता नहीं चलेगा. 1 मिनट. यू कैन नॉट मेजर कंसंट्रेशन देर, बट देर यू कैन डिटेक्ट डिटेक्शन. देर यू कैन डिटेक्ट मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीजन, बट हियर यू कैन एस्टिमेट ए सिंगल एंटीजन. One is qualitative, one is quantitative. Clear? Right? So, another one is counter current immunoelectrophoresis. You can apply here. एंटीजन क्या आपको पहले पता करना पड़ेगा. देन एंटीजन को बनाना पड़ेगा, नॉन कंसंट्रेशन लेकर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसका अर्थ क्या लगेगा. तभी हाइट से फिर कोरिलेट करोगे. नहीं, आप जैसे कंसंट्रेशन व्हाट टाइप ऑफ यू आर एडिंग इन जस्ट शुगर एस्टिमेशन, प्रोटीन एस्टिमेशन, लाइक दैट यू हैव टू डू.
Any quantitative essay, you have to draw a what you call standard curve, a standard draw line. Then only you can estimate. Okay. Now counter current. Here what happened? The movement of antigen towards the anode and antibody towards the cathode. एक दूसरे को the antigen will load because we know that there are two different type of when they are contain two different type of charge. Antibody will move from either direction and to another direction. In that case, they will interact with each other very electric field. Procedure: perform a glass side with agarose in which pair of well is punctured. Look at here. One well I will keep antigen, another well I will keep antibody, counter current, that's why. But here what happened? Antigen and antibody, the main principle of this, the main, what is the what is the requirement of this? Antigen, antibody both have alternate charge. They don't have same charge or neutral. Same charge होने क्या होगा? ये इधर आएगा और आगे जाएगा. वही न्यूट्रल में कहीं नहीं जाएंगे. So it should be should be in different charge. When they are in different charge, then they will come to each other, counter to each other. Okay. Now here the migration in 30 to 60 minutes. बहुत नहीं होंगे. Look at here. This antigen, here I am keeping antigen, here I am keeping antibody, right? In general case, what happen? If I am not applying electric field, antigen will move, antibody will move. When they get equal, they will precipitation line. But here what happen? I will apply electric current. Suppose if your antigen is negative, where it will move? It will move negative to positive because it is negative to positive, negative to positive. When an antibody is positive, it will move from here to here. So what happens? It will speed up the procedure. That's all. Counter current. Here one current, here another current. If the antigen is negative, then antibody is also negative. What happens? It will move here, it will move here. They cannot meet at a time. But question is that antigen is negative, antibody is also negative. Which condition they will perform precipitation line? Which condition? What is the condition? Did you get my question? Here, antigen negative. अगर एंटी नेगेटिव है, हम इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर एंटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर यहाँ से मूव करेगा. एंटीबॉडी नेगेटिव होगा, तो वो भी इधर से मूव करेगा, पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, राइट? ये तो इधर कभी नहीं आएगा ना, नेगेटिव टू नेगेटिव. पर मेरा क्वेश्चन is you can create any situation where they will produce a precipitation line. देखो प्रेशर लाइन प्रोड्यूस करने का मतलब है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है. Which condition? चार नंबर सही है. सिंपल इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे. इतना ज़रा क्यों सोचना है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे. काढ़ी नाखो ना भाई. जेल में रखो तो भाग जाएगा. भाग ही नहीं जाएगा. इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. देखो आप इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करो या ना करो, लाइन तो एक ही जगह में लगे जहाँ प्रेसिपिटेशन हो, मतलब इक्विवेलेंट होंगे. और सिंपल डिफ्यूजन. एक मिनट चलो. हेतलबा को कौन आंसर करेगा?
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के लिए एपिटोप एंड पैराटोप चाहिए उनका पास, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। इलेक्ट्रिक चार्ज तब फर्क पड़ेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। व्हेन वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी दैट ओनली चार्ज विल मैटर। समझ गए अभी? स्पीड तो होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? ये एक ये जितना स्पीड यहाँ आएगा उतना उसका आगे जाएगा, दोनों कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है? देखो इलेक्ट्रिक, सुनो मेरा बात, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद इलेक्ट्रिक का कुछ फर्क पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हो वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद चार्ज है या ना है। आप कान बंद कर दोगे तो मैं कितना बकबक करूँ सुनाई नहीं देगा, दैट्स ऑल। मैं आपको गाली दे रहा हूँ या अच्छा चोर, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो कान बंद करके रखे हो। समझ रहे हो? आप इलेक्ट्रिसिटी दे ही नहीं रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, कुछ मतलब नहीं होगा उनको। Look at here, how it is looking in agar or gel. हाँ, उसको सुनने नहीं दिया, आपने तो सुना। ओके, एप्लीकेशन एक एक दो एप्लीकेशन बताएंगे। ऋषभ, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस? भाई तो एंटीजन में मिक्स कब किया? अब बोला एंटीजन एंटीबॉडी को सेपरेट कर सकते। मेरा क्वेश्चन है व्हेन वी हैव बीन मिक्सड द एंटीजन विद एंटीबॉडी। Antigens. If detection of antigens, okay, I can visualize a number. Number will be anyone. I can write a number. If I am writing, I can write a number. It may be any number. That's it can detect the antigen. First one. Second, it can separate mixture of antigen. Third one, it can
Same for antibody, and the most one is concentration of antigen and antibody. That much. उतना ही है. 4 पॉइंट है. It can detect some antigen, detect antigen, separate antigen, estimate antigen. Detect, separate, estimate. Right? It can detect, it can separate, it can estimate या quantify the amount of antigen. Look at here. Qualitative as well as quantitative. बता दो. पढ़ो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी पढ़ो. उसका एक क्वेश्चन है यार, लास्ट सेंटेंस क्या होता है? सेकंड लास्ट. Application of this will come in your sometimes 4 mark. M protein हमने पढ़े थे. Then medical diagnosis use. Then hypo गामा ग्लोबुलिया, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे हम पढ़ेंगे कहाँ पे जाके, पता है आपको? सारे हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में. इसका बाद में सीधा यूनिट 3 स्टार्ट करूँगा. क्लियर? गेमोपैथन से मतलब एक होता है कि हाँ, एक टाइप का डिजीज. सडनली क्या होगा, आपका बॉडी में एक टाइप का एंटीबॉडी बढ़ता रहेगा, वो भी एबनॉर्मल. इट इज काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज बोल सकते हैं. हाइपर ऑटोइम्यून में होता है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एबनॉर्मल बढ़ता रहेगा. वन पर्टिकुलर एंटीबॉडी विल इंक्रीज इन योर बॉडी एंड दैट विल एबनॉर्मल. So anyway, the main thing is there is 3 terminology you have to remember. DSE, detection, estimation, separation, या DES of antigen of antibody. 6 पॉइंट मिल गया आपको. क्लियर? 4 मार्क. बस DSE याद रखने से 4 मार्क. Advantage, we know about that, the application advantage. What is limitation? Limitation is immunoelectrophoresis is slower, less sensitive. Sometimes here there is slower and faster, less sensitive. In the speed होते, whenever speed matters, sensitive doesn't matter. Sensitive नहीं आएंगे speed जहाँ पे होंगे. आपको बोलूँगा स्पीड में 10 मिनट में लिख के एक पेज दो, एरर होंगे. पर आपको बोला एक पेज लिख के तो आराम से. हाँ, स्लो होंगे तो हाई सेंसिटिव होगा. स्लो नहीं, फास्टर होना चाहिए. सेंसिटिव कैसे स्लोअर बना दिया गया इसको. टेक्निक इज रैपिड, स्लोअर. दैट्स वाई क्योंकि कभी 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ता है रिजल्ट के लिए. इट इज नॉट एग्जैक्टली स्लोअर इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्पीड. हाँ, same. Anyway, so I will upload today itself this one. Now we will move to the further. Further is very, very, very important. And if you want, I will give you a break of 2 minutes. Because I will give you some different type of break. Just close your eyes
and sit down. Keep quiet. मेल करूं? चुपचाप 2 मिनट बैठो. फतेमा कथा में ऑडिबल? सोनू? Hope my screen is visible as well, right? Hope my screen is visible, right? Okay. Time up. हर पॉइंट में. Now I will come to the immunoassay. So before going to that, anyone can justify what is immunoassay? What is immunoassay? Anyway, yeah, Majan. Very good. Listen to it. There is a biochemical test. Because he has already studied all this in second semester. Immunoassay. Whatever we discussed last class about immunoelectrophoresis, all these things are also immunoassay, but we are observing a precipitation light. But here we will customize some different things. Immunoassay. The main thing is there is antigen, there is antibody. When they interact, the antigen antibody complex formation takes place. Is that right? Now, we can measure that complex. We are visualize that complex in a precipitation line, but sometimes you can measure as well. Okay. Now, immunoassay. Whatever the application of electrophoresis, detection, estimation, and separation. Here we are not interested for separation, but the other two, estimation and detection. Or it is a biochemical test whether we are going to measure or identify. That means qualitative and quantitative analysis of antigen or antibody. Very simple. Immunoassay is a simple biochemical method where we measure the presence
or concentration of a target molecule in a solution by using antibody. Sometimes whenever we going to measure antigen, or antibody sometimes whenever going to measure antigen. वेरी सिंपल, अगर मैं एंटीजन मेजर करना चाहता हूँ तो एंटीबॉडी यूज करूँगा. whenever I want to measure antigen, I will use antibody. Whether I want to measure antibody, I use antibody. Clear? समझ गया? What is immunosecurity? What is immunoassay? Sruja, what is immunoassay? हाँ, उसको तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इम्यूनोएसे मतलब શું છે? एसे. एसे मतलब हम जो लिखते हैं ना 2-4 पेज का, दैट इज ESSAY. ASSAY. एसे मीन्स मेजर. एसे मीन्स असेसमेंट मेजर. इम्यूनो मीन्स इम्यूनो कॉम्प्लेक्स. इम्यूनो वी आर मेजरिंग इम्यूनो कॉम्प्लेक्स. wherever immuno complex will first take place, when antigen and antibody interact with each other, in that place you will find the immunocomplex. Clear? So what do immunoassay? It is the biochemical test. मैं सीधा गुजरे आ बायोकेमिकल टेस्ट से जहाँ में एंटीजन या एंटीबॉडी को मेजर किया जा सकता है. क्लियर इज दैट? ना नहीं समझ में अभी भी? Look at this picture. In the first picture, detection of antigen. Because the antibody, I am using here antibody. One is fixed. Okay? One is fixed. Here I am applying the antibody. The antibody concentration is the same. Here, at the same time, detection of antibody. Here what happens? There is the black surface is your fixed surface. Here I am using 1, 2, 3, 4 antibody. I know how many antibodies are with me? 4. So at the end, if all is saturated, that means 8 antigens is present. If half saturated, 4 antigens are present. Right? If 1/3 saturated, 2 antigens present. If 3/4 saturated, 6 antigens is present. Because I know how many antibodies I have. According to that, I can access the number of antigen. Clear? Same thing, the reverse thing is in the तो ज़्यादा होंगे. वही तो लिमिटेशन फैक्टर है इनका. लिमिटेशन वही फैक्टर है. कभी कभी एक्सेस होंगे तो पता नहीं चलते. मेरा क्वेश्चन था सर प्रैक्टिकल. ऑलवेज व्हाई वी आर यूजिंग हाफ लाइफ ऑफ ए मॉलिक्यूल. हाँ, और मुझे बताओगे आप लोग इस सेमेस्टर खत्म होने से पहले. मैं तो सेम क्वेश्चन ही पूछूंगा. उसके बाद उसकी एक्टिविटी नहीं होती. कौन बोला? चलो क्लोजर टू आंसर पर जस्टिफाइड एक्सेस.
मैंने बोला इस सेमिस्टर एंड तक बोलना, अभी नहीं, वो डिबेट होगा उसके लिए एक दिन। वाई हाफ लाइफ? वाई, what does half life of a molecule, if that is a reactive molecule, if it is a reactive molecule, why there is half life? We are also IC50, we are sometimes when we are going to estimate the inhibitory LC50, lethal dose 50, IC50, inhibitory concentration, inhibitory, when you are estimating some compound of microbial activity, you are also in IC50. मैंने बोला घर जाओ प्रैक्टिस करो, आके तीर मारो, इधर नहीं मारना है। क्या बोला? घर में जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो और सीधा लगाओ। हाँ मतलब घर में जाके पढ़ के अच्छे से आओ। नाउ टाइप्स ऑफ इम्यूनो एसिड। चलो मेल करो, मैं लिख के देता हूँ, कल बताओ। We will discuss in another class, okay? But before come to that class, you have to read. पढ़ के आओ। Because I have to discuss lot more on that. समझ गए? मैंने बोला I will take a debate on that. I want to justify why half life matters. 50 के बाद 51 होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, या 49 होने से क्या प्रॉब्लम, वो भी बताऊंगा आपको। इसलिए चुपचाप बैठो, पढ़ेंगे हम, पढ़ के आना। कोई एक दिन डिस्कस करेंगे, कोई मैं से क्लास में इंटर करूँगा, कोई डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक नहीं होगा हमारे पास। एनीवे, टाइप ऑफ इम्यूनो एसिड I will complete today Ria. Then ELISA I will come next class. So, types of amino acid. How many types are there? Competitive, non-competitive, homogeneous, heterogeneous. Competitive means antigen antibody molecules. We are going to estimate antigen, yeah, antibody, but we know they are compatible to each other. Still, there is another competitive molecule is there, which will be competitive for this. Okay, that is competitive. Non-competitive means there is normal thing what you are thinking. Heterogeneous means if molecules are different type of antigen. Homogeneous means same type of antigens. Okay, the popular method of सही है. Now popular methods are RIA, ELISA, FIA, fluoroimmunoassay, SCLIA, chemoimmunoassay. So all the R's are coming over here. So we will discuss only two of them, RIA and ELISA, and both are very much important for your exam point of view. So today I will start with RIA and I will complete. Please concentrate on me. RIA में कुछ छे નથી. हाँ छे નથી, કશું છે નથી, એટલા કશું નથી, એટલા બડા કશું છે હે નહીં. What you are thinking RIA means, हाँ इतना बड़ा nothing. You just apply your logic, only logic. So before going to that, एक lady develop किए थे. The RIA is very sensitive in vitro technique assay which measure the concentration of substances, generally antigen. Generally what? Antigen. Developed by R.S. Yellow and version, S version. First time they used this technology for estimate the serum in the insulin in the plasma.
in 1959. Look at 1959. For that they were a Nobel. For that they were Nobel Prize in 1977. So RIA is a specific, sensitive and rapid assay. Now we will come to the principle. RIA, radio immunoassay. What does it mean? Somewhere we are using radioisotope. Clear? Yes, sir. Somewhere we are using radioisotope in the technique. That's why radio immuno. Sena mate immuno? Aarti? There are three terminology. Radio immunoassay. तीनों को define करो. Please define these three terminology. फिर से एक रेडियो, दूसरा इम्यूनो, तीसरा एसे. आकाशवाणी છે. देखो मारना है तो जोर से मारना, जाके बाहर दे टपके जैसे, वैसे नहीं मारना होता है. देखो हाँ मैं आपको लगा नहीं, मतलब जानबूझ के मारा नहीं. मैं बोला था मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था, कैच थोड़ा अच्छे से लेफ्ट राइट दोनों में. मुझे तो 50,000 लग जाएगी ना. This is isotope, antigen, antibody, measure. This is not measure. Okay. So principle is very simple. It is a competitive binding. RIA is competitive binding. That means some other molecules is there for competition. Clear? At the end we will go clear. Radio labeled antigen competes with the unlabeled antigen. Here what happen? Whatever antigen we want to measure, the same antigen we required radio label. Did you get me? अगर मुझे हेपाटाइटिस बी वायरस का एंटीजन मेजर करना है तो सेम एंटीजन मेरा पास लैब में रेडियो लेवल में होना चाहिए. रेडियो लेवल कैसे करेंगे? रेडियो आइसोटोप में. तो देखना पड़ेगा एंटीजन क्या है. कार्बन है तो 14 लगा देंगे, आयोडीन है तो 21, 22 लगा देंगे. वो अमीनो एसिड के साथ होता है, अमीनो एसिड इंटर करके लगाते हो, उसका टेक्निक है, वो लैब में होते हैं. उसका देखो कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी है. ओके. कोई पूरा एंटीजन का नहीं, कोई मॉलिक्यूल कैसा लगाना है. वी आर नॉट एंटायर, वी जस्ट कीपिंग रेडियोइसोटोप फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. हाँ कोई एक को लेवल कर देंगे, 15 कर देंगे. Okay, so the main principle is whatever antigen you want to measure, the
antigen should be present within you in radio level. Clear? 15 मिनट आपका पास अच्छे से समझो. ओनली एंटीजन को, नॉट एंटीबॉडी. रिया प्रोटोकॉल ओनली एंटीजन को मेजर करने के लिए किया जाता है, एंटीबॉडी को नहीं. क्लियर? ओनली एंटीजन. भले आगे लिखा होगा कुछ, वट एवर रिया रेडियो लेवल करने के लिए हर इसी का रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं. कोई भी एक मॉलिक्यूल को, कोई भी एक एटम को किया जाता है, एक ही एटम को, पूरा एंटीजन को नहीं. थोड़ा एक बढ़ेगा नहीं. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मास, वी आर इंटरेस्टेड इन रेडियो आइसोटॉप. देंगे तो फ्लोरोसेंट निकलेंगे. दोनों करेंगे, मैंने कहा मना किया है. पर बात है, सुनो, रेडियो आइसोटोप होंगे तो भी बाइंड करेगा, नहीं होंगे तो भी बाइंड करेगा. बात है कि रेडियो आइसोटोप होंगे तो बाइंड करेगा तो कुछ सिग्नल निकलेंगे. फ्लोरोसेंट जैसा समझो. तो कुछ सिग्नल डिटेक्शन होगा, रेडियो सिग्नल. वो मॉलिक्यूल जहां पे होंगे रेडियो आइसोटोप, they will emit some kind of signal. We will measure that signal, that's all. Clear? 100% आएगा. वही तो करना है हमें. नहीं, रेडियो आइस आपको क्या लगता है रेडियो आइसोटॉप बाइंड करना एफिशिएंसी ज़्यादा है? व्हाट विच नॉर्मल एंटीजन एंड रेडियो आइसोटॉप एंटीजन, दोनों एंटीजन बोथ एंटीजन आर सेम, पर बाइंडिंग एफिशिएंसी इज मोर इन नॉर्मल रेडियो आइसोटॉप. वेट, हमने अगर कोई मॉलिक्यूल को है, जैसे कि मैं इसको यहीं बैठाया, तुम आराम से बैठो, बैठा, उसको मैं हाथ में पेन पकड़ा के बैठाऊंगा, तो कंसंट्रेशन देखो बैठ पाएगा, ही कैन सिट, बट कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं हिलेंगे. उसको लगे कि हम नॉर्मल स्टेट में चले जाओ. ऑलवेज ईच मॉलिक्यूल, ईच थिंग दे विश टू गो इन नॉर्मल स्टेट. ऑलवेज याद रखो, नॉर्मल एंटीजन का बाइंडिंग एफिशिएंसी, बाइंडिंग कैपेसिटी रेडियो आइसोटोप से ज़्यादा ही होंगे. अनलेस अनटिल मैं इसको रस्सी में चेन में ना बांधूं, पेन पकड़ाऊंगा रस्सी में बांध दूंगा तो हिलेगा नहीं. अनलेस अनटिल आई डू नॉट डिजाइन एक्सपेरिमेंट व्हेन आई अप्लाई सम मॉलिक्यूल फॉर टाइटनेस. डिड यू गेट मी? हर चीज में एक्सेप्शन है. नॉर्मल एंटीजन का बाइंडिंग करने का एफिनिटी टुवर्ड्स एंटीबॉडी, सेम एंटीबॉडी के लिए एंटीजन को इसको रेडियो आइसोटोप कर दूंगा तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा नॉर्मल का, तो जल्दी बाइंड करेगा इससे. हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला रस्सी में बांध दूँ, तो उसके इसमें कभी कभी हम और कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं जो ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, पर वो एक्सेप्शन केस है. क्लियर? ना प्रोटोकॉल देखो कि कुछ है नहीं. So at first, what is requirement? Requirement is radio labeled antigen is required. Now the antibody and labeled antigens are always present limiting factor. What does it mean? Antibody, suppose there is a matrix. Here, one antibody, two antibody, three antibody, there are four antibody. Okay? Now this is radio level antigen.
So starting with this, we can start with this. There is a matrix well. In the well, antibody are fixed, and all the antibodies are saturated by radio level antigen. Is that clear? कैसे होता है प्रोटोकॉल, समझ में आया? हमने एक सरफेस लेंगे. In this surface we are fixing the antibody. The number of antibody is constant, fixed. Suppose here 4, and all the antibody paratope of the antibody has been saturated by radio level antigen. Is that right? Clear? Rhythm? Clear? तो पूछो मुंह तो हो जाएगा. आप खड़े जाओ, बताओ हमने क्या बोला. श्रीराज क्या है ये पे? नहीं बोलो, सभी को समझ में आना है. बोलो. हमने एक सरफेस लेंगे, फिर से बोल रहा हूं. इन दिस सरफेस वी आर कोटेड विथ एंटीबॉडी. हमने एंटीबॉडी फिक्स करेंगे और एंटीबॉडी का नंबर फिक्स है. सपोज यहाँ पे 4. कितना एंटीबॉडी लगाया मैंने? 4. और एंटीबॉडी का स्पेसिफिक एंटीजन होता है, और एंटीजन ईच पैराटोप हैज बीन ऑक्युपाइड बाय ए एंटीजन. तो कितना एंटीजन आएंगे यहीं पे? 8. कंडीशन इज ऑल द एंटीजन्स आर रेडियो लेवल. क्लियर? ओके, समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं. There is a well. In the well, in the surface, we have coated an antibody, and antigen are already bounded on the antibody with radio level. Now, initially 1, 2, 3, 4, 5, 8. Suppose यहीं पे 10 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are all are leveled with radio level. 10 antibody, 20 antigen, radio level. Clear? So initially I will measure the radioactivity, radio emission. Initially what I will measure? Before going to reaction, I will measure the radio emission and I will make it 100%. Whatever the radio emission, it is 100%. Clear? Standard. So initially, because all the antibodies has been saturated, suppose 10 antibody, 10 antibody, 20 antigen. So 20 antigen. Who are giving the radio emission? These 20 antigens. Who are giving radio emissions? 20 antigens, right? Not antibody. Now whatever, I will add normal antibody, which is not having radioisotope. और मैंने क्या बोला था? लॉजिक क्या है? नॉर्मल एंटीजन का एफिशिएंसी रेडियो आइसोटोप ज्यादा होता है, तो कॉम्पिटिटिव होगा यहीं पे. When I will have normal antigen, suppose मैं 2 डाला, कितना एंटीजन डाला? 2, तो 2 निकल गए. तो अभी कितना बना आपका यहाँ पे? 18 एंटीजन विथ रेडियो आइसोटोप. यहीं पे 2 आपका आइसोटोप आएगा, नॉर्मल आएगी. तो आपका आइसोटोप का परसेंट कमेगा ना, कम हो जाएगा. तो कितना परसेंट हो जाएगा? 80% होगा, क्योंकि 2 = 10 है. Gradually when I will increase the normal antigen, now radioisotope gradually decrease. Is that clear? This is the principle, nothing but. अगर मैं और एंटीजन डालूंगा, रेडियो निकल जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा. सो जितना एंटीजन कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते जाएगा, रेडियो कंसंट्रेशन कम होते जाएगा. इज दैट राइट? यही प्रिंसिपल यार, कुछ नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें. हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है? राइट,
सिग्निफिकेंस ये है, आपको टेस्ट करना होगा हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। तो ऑलरेडी रेल है, उनको पता है उसमें कितना आपका सीरम डाल दिया जाएगा, देखेंगे कम हो रहा है और कितना कम हो रहा है, तो इतना परसेंट का। ओके, नाउ लुक एट दिस, लुक एट द ड्राइंग डायग्राम। हेतल बात समझ में आया? कल्याणी समझ पाई? सिंपल है, ऑलरेडी एंटीजेन्स आर लेवल्ड विथ रेडियोइसोटोप्स. Now when I will add normal antigen, it will replace. Now at first the radio, gradually when I will increase the normal antigen, the radioisotope get decrease. Clear? Look at this picture. In that picture you can clear lot more. In this picture here, same thing happen. Infected serum with normal serum, generally they are level with, I will come to second picture, it will clear a lot more. Now you can go on that, just observe this picture, just observe. Variable quantity of unlabeled antigen. If unlabeled antigen is 0 nanogram, that means radioactivity 100%. If I will add 1 nanogram of unlabeled normal antigen, now 10% decrease the radioactivity. This is just whatever my observation, it is not compulsory, it is not universal. मैं एक एक्सपेरिमेंट किया, जो मैं पहले रेडियो एक्टिविटी 100% था, मैं जब 1 नैनोग्राम डाला 10% कम हुआ, 2 नैनोग्राम डाला 80% कम हुआ, 3 नैनोग्राम डाला 30% कम हुआ, 4 नैनोग्राम डाला 30% कम हो गया मतलब इतना बाकी इतना रहा। जब 90 नैनोग्राम डाला 90% कम हो गया, 10% ही रहा। क्लियर? Now according to that, look at next picture. Infected serum, HBs antigen, we are detecting here HBs antigen, right? Now initially it has been labeled with I-125. Initially what you labeled with I-120, iodine 125, the red color one. बट हम इन्फेक्टेड जो सीरम डालेंगे धीरे धीरे क्या करेगा, फास्ट वन, ये फास्ट पिक्चर, सेकंड वन, फास्ट में क्या हुआ, 3 एलिमेंट था, ये पूरे ऑफ दीज ऑल आर अम्प्लीफाइड बाय रेडियोइसोटोप. व्हेन आई विल ऐड इन्फेक्टेड सीरम एंड द सीरम कंटेन 3 एंटीजन, हाउ मच, 3 एंटीजन, so 3 will occupy basically. So in that case, how much radioisotope radioactivity decrease? 50%. So in that concentration we can measure concentration. Sir, yeah, uninfected में भी unaffected नहीं होगा, ये ना ये सीधा होगा, ये निकल गया। Okay. Now my question is, here is a question. By visualizing this one, question is that if radioactivity of the antigen complete 25%, radioactivity 25%, first picture में, then what is concentration of HBs antigen? So what is the concentration of antigen by visualizing this? What is the concentration of antigen? 1 नैनोग्राम डालता हूँ
मैं गलत लिखा था, कोई पकड़ेंगे बोल के आप लोग। नहीं मतलब मैं सोच रही थी अगर 5 होगा तो कितना होगा? That is also 9. That is also 9. वही तो बोला, that is also 9. कंफ्यूज करूंगा ही ना मैं, 100% आई विल कंफ्यूज यू, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट हो। वो 9 होगा और ये 7.5 होगा। क्लियर? वहां पे देर इज 2 टेक्निकल एरर एंड आई हैव डन इट पर्पजफुली। जीरो एक एक्स्ट्रा है उसमें। ओके, नाउ सेकेंड वन, if the concentration, antigen concentration equal to 3.7 nanogram, not 37, 3.7 nanogram. Now, what is radio complex? 63. एंटीजन पॉइंट में आएंगे, बाकी 60%। क्लियर? सो एप्लीकेशन ऑफ रिया, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, this is also a 4-mark question, application of RIA. We can analyze drug, we can analyze vitamins, hormones, disease diagnosis, cancer, tuberculosis, hepatitis B, and many more. So next class will be we will discuss ELISA. Okay, ELISA जो बोलना चाहते हो आप, that is up to you. Soon I will share the attendance link. No, I will not. Now I will share. Please. I will share your attendance link. Okay, I will share in your group. Thank you for listening. Bye.